Hello everyone, welcome back to the class. Master Satya. Dear friends, it has been long days. I have not met you over here, and as you know, this is summer vacation, and I've been staying at home, finding very hard time to spend over here. So anyway, let's begin today with a new chapter, that is about your federalism, so being a part of your democratic journey or your constitutional journey. So, in the first chapters, as you know, my friends, you learned about the power sharing and how power sharing is done at the different levels of the government, at the different organs of the government, at the different constituents of the government. तो हम देखेंगे अभी पावर शेयरिंग कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स में हुआ था, डिफरेंट आपके फॉर्म्स में हुआ था, डिफरेंट लेवल्स में कैसे हुआ था वो दिखे थे. तो इन दिस चैप्टर्स वी विल कंटिन्यू, we will take one of the nature of power sharing. Here you can see you have learned that the divisions of power sharing among the different levels of the government is one of the major forms of power sharing in modern democracies, that we used to say as horizontal division of power sharing. And this federalism is all about the horizontal division of power sharing, the horizontal power sharing. So this will be the minute detail about that horizontal power sharing. In this chapter you will understand the theory and practice of federalism in India as well. हम भारत में देखेंगे what is the nature of power sharing in India, what is the nature of power sharing, what is the nature of the federalism, the concept or the ideas of federalism in India. So, and beside this, we will be talking about towards the end of the chapter about the local government, that very often a unique concept in the context of India. It is very unique context throughout the world as well. ओके दुनिया में सिर्फ ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि भारत में ही देखने को मिलता है. दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक. ओके, तो ये सारे चीज़ें हम इस लेसन में समझेंगे. तो पहले हम फेडरलिज्म को जानने से पहले लेट्स नो अबाउट व्हाट इट इज़. ओके, योर फेडरलिज्म व्हिच विल प्रोवाइड ए क्लियर इंसाइट इनटू द चैप्टर इन ऑल द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. तो हम देखेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है. देखिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, in which power is divided between a central authority and the various units of the government or the units of the country. Okay, say your state, district, your different local units of governance. Okay, so ये क्या होता है, सेंटर के साथ साथ जो कंट्री में डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं, उसमें जो पावर शेयरिंग होता है इसको क्या कहा जाता है ना आपके, ये इसको फेडरलिज्म कहा जाता है. राइट. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड साथ में जो डिफरेंट स्टेट्स है, आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हो या लोकल सेल्फ का जो भी यूनिट्स है, उसको आपका ना फेडरलिज्म कंसेप्ट कहा जाता है. राइट. A federation has two levels of government. Both these levels of government enjoy their power independent of others. So इसमें हम देखेंगे कि what are the different features of the federation. फेडरेशन में ज़्यादातर कि क्या होता है, ए फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ज़्यादातर कि most of the country in the world have two levels of government, one being the सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट. ये सेंटर जैसे हम इंडिया में दिल्ली गवर्नमेंट है और साथ में उड़ीसा है, बिहार, छत्तीसगढ़,
इन सारे राज्यों में भी एक एक गवर्नमेंट होता है। आपके जो यूनियन टेरिटोरीज भी आप ले सकते हो, ये सारे गवर्नमेंट होता है। ओके, तो जैसे कि पंडिचेरी और दिल्ली में भी स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एक ठो होता है। देखो, ये फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी फेडरेशन का मतलब में दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यानी कि एक जो दोनों में जो पावर शेयरिंग हुआ है वो इंडिपेंडेंटली उनके पावर एंजॉय करते हैं। नो यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन अदर यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट। किसी एक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट दूसरा यूनिट ऑफ गवर्नमेंट को वो इंटरफियर नहीं कर सकता है, राइट। उसके बाद one is the government for the entire country that is usually responsible for a and few subject of common national interest, and governments at the level of the provinces or states that look after much of the day-to-day administering of the state। तो इसमें हम देखेंगे, हाँ, इसमें आप क्या देखें कि एक जो मैं गवर्नमेंट बताया कि एंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट होता है जो कि नेशनल इंटरेस्ट का कुछ चीज़ें में लॉ बनाता है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट है वो डिफेंस हो और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो या आपकी जो बैंकिंग सिस्टम हो, ये सारे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहता है। स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो एग्रीकल्चर हो, पुलिस सिस्टम हो, ये सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट में रहता है। तो कुछ लिस्ट रहता है। देखो, इसमें डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम देखेंगे कि देखो, दुनिया में दो तरह के गवर्नमेंट रहता है। डेमोक्रेसी का जो दो तरह के डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है, वन इज यूनिटरी गवर्नमेंट एंड अनदर इज फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल and the different units of the central governments are subordinate to it। ओके, इसका सबऑर्डिनेट में रहते हैं, यानी कि इसका अधीन रहते हैं। लेकिन फेडरल में इसका जो यूनिट रहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल एट द सेम टाइम द सब यूनिट्स ऑल्सो इक्वली पावरफुल एंड देयर राइट्स और देयर द एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शंस इज बीइंग सेफगार्ड बाय ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ना वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है, जो कि हम आगे भी पढ़ सकते हैं। सो देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में आपको समझाने के लिए ये बना है हूँ फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिटरी सिस्टम। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट रहता है। इन यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और the subunits are subordinate to the central government, as I was telling कि जो सब यूनिट रहते हैं वो उनके अधीन रहता है। सपोज जो इंग्लैंड का सिस्टम है, इंग्लैंड एक यूनिटरी गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल। द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीइंग फॉलोड बाय द सब यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो सब यूनिट्स है वो सारे उनको मानना ज़रूरी है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाएगा तो उसको उड़ीसा गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट मानने में मजबूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर्स है, भारत के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाएगा तो यानी कि ये स्वाधीन है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके राइट्स, उनके जो जुरिडिक्शंस है, जो द एरियाज़ ऑफ गवर्नेंस है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रभावित नहीं कर सकता है। तो आगे देखते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या होता है, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। अभी यूनिटरी के फील्ड ले जाते हैं। सेकंड पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ये दबाव दे सकता है, यानी कि ऑर्डर्स दे सकता है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इक्वल राइट्स टू मैंडेट और टू मेक लॉज। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। जैसे कि
मैं अभी अभी बताया कि इस दिल्ली गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग का जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट का भी कुछ राइट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिपिबद्ध है, यानी कि लिखा गया है। थर्ड नंबर क्या होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एक्सरसाइज ओनली पावर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड टू देम। Their power may be broadened and narrowed by the central government। ये लिखा गया है कि जो यूनिट्स रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर द्वारा क्या हो सकता है, बढ़ा जा सकता है या उसको घटाया भी जा सकता है। narrowed by the central government। ओके, तीसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर of its own for which it is not answerable to the central government। This is the thing as I was trying to explain you all the time so far। तो मैं ये समझा रहा था कि किसी भी फेडरल कंट्री में, किसी भी फेडरल स्टेट में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दबाव नहीं दे सकता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द different between the unitary system of government and the federal system of government। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये बहुत आसान है, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं इस सारे बारे में। अभी हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो बच्चों ये फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स और ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो सकता है। नहीं, फेडरेशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन, राइट। फेडरेशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन। सो सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम्स आर, क्या है हम देखते हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया। मैं तो बाद में और एक तो बताऊंगा, तीसरा लेवल्स बनाऊंगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में है। बाकी दुनिया के बहुत सारे कंट्री में ऐसा नहीं होता है। देखिए, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ओके, इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शंस। लेकिन सारे टीयर का उनके दो एरिया ऑफ गवर्नेंस अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं बताया कि सारे स्टेट का जो है उनको भी कुछ पावर दिया गया है, उनको भी कुछ सब्जेक्ट में लॉ बनाने के लिए बताया गया है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ एरियाज़ में पावर रहता है एंड दैट हैज़ बीन सेपरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ओके, ये सिर्फ भारत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया के सारे फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होता है। जैसे कि अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्री, यानी कि लगभग 50 कंट्री मिलके एक कंट्री बनाए हैं। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और सारे स्टेट का खुद का पावर रहता है, सारी कंट्री का खुद का पावर रहता है। जो यूएसए है, क्या है वो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि इसमें बहुत सारी कंट्री मिलजुल के आए हैं, मिल के एक बहुत बड़ा सा पावरफुल कंट्री बनाए हैं। तो आगे हम उसके बारे में फिर से देखेंगे। सो देखते हैं थर्ड नंबर क्या है। द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इसका पावर कितना रहेगा, किस स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रहेगा। D. The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally यानी कि अकेला, ओके, cannot be unilaterally changed by one level of government, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला किसी भी डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है। Such changes require the consent यानी अप्रूवल, या चाहिए अप्रूवल यानी परमिशन चाहिए ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर किसी रूल चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या करना पड़ता है आपको? बाकी स्टेट का भी डिसीजन यानी कि सजेशन लेना पड़ता है। सपोज भारत में पहले कितने स्टेट्स हुआ करता था? पहले 29 हुआ करता था, अभी कितना है? 28 था।
तो उसी टाइम क्या होता था ना, 15 स्टेट्स को उसके ऊपर राय देना पड़ता था। मोर देन 15 स्टेट्स अगर 15 स्टेट अगर किसी डिसीजन में हाँ भरते थे, तब ही सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को चेंज कर पाता था। क्लियर? ओके, आई होप यू क्लियर अबाउट ऑल दिस। आगे देखते हैं, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इसमें, क्या रहता है, जो आपके जो भी लॉ सेपरेट किया जाता है फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट में जो भी लॉ सेपरेट किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, दे आर बीइंग सेफगार्डेड बाय द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। वो किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? जुडिशियल सिस्टम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, राइट। तो ये सारे द्वारा सुरक्षित रहता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट यानी कि टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। आगे देखते हैं, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, इसके बारे में भी लिखा गया है। देन अबाउट द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट वन बीइंग to safeguard and promote the unity of the country, is right, to safeguard and promote the unity of the country। पहला काम है कि देश को एकता बनाना। क्या बनाना? एकता बनाना। सारी कंट्री, सारे स्टेट को मिलके एक संघ बनाना, एक यूनियन बनाना, एक देश बनाना होता है। ओके, तो ये पहला मकसद है। तीसरा क्या है? एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी टू सॉल्व आउट। एकोमोडेट का मतलब क्या है? क्या करना है ना, आपकी समझदारी के साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फेडरेशन बनने का दो तरीका है जो अक्सर दुनिया में देखने को मिल रहा है। डिफरेंट रूट्स थ्रू व्हिच फेडरेशन कैन बी फॉर्म। कैसे बनता है देखते हैं हम आगे। Two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism। पहला क्या क्या है? A mutual trust between the government of different levels and agreement to live together। ओके, तो इसमें क्या होता है? ज़्यादातर के म्यूचुअल ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपस में क्या रहना? ट्रस्ट यानी कि विश्वास रहना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। देयर मस्ट बी ए कंसेंट, ए डिस्कशन, ए डेलिब्रेशन टू लिव टुगेदर, ए कमिटमेंट टू लिव टुगेदर रहना ज़रूरी है। तो ये बनते कैसे हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू व्हिच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। फर्स्ट रूट कैसे है? फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। इंडिपेंडेंस स्टेट क्या होते हैं? बहुत सारे स्वाधीन कंट्री कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनियन। दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज नाउ ईच फॉर्म इन यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बताया था कि 15 स्टेट्स इन अमेरिका, स्विट्जरलैंड की कितने पता नहीं, आप सर्च कर सकते हो, ये आपको होमवर्क दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का 8 कंट्री है शायद, ओके, जो कि मेजर सिटीज है इसका, वो मिल के एक कंट्री है, जो है वो सारे मिलके एक कंट्री बनाए हैं। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड क्या होता है ना, कभी कभी अक्सर दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा कंट्री छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि भारत में है ना। द सेकेंड रूट इज़ दैट ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर, इसको क्या कहते हैं? वो कमिंग टुगेदर है, ये है होल्डिंग टुगेदर। जैसे कि भारत डिवाइड होके बहुत सारे स्टेट बनाया। अभी कितने स्टेट है? 28 नंबर ऑफ स्टेट्स एंड 9 नंबर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज। ओके, सो ये है अमेरिका में ये वाला फेडरेशन, इंडिया में ये वाला फेडरेशन है, ऑस्ट्रेलिया स्पेन में है और बेल्जियम में है, जो कि हम बेल्जियम के बारे में हम देखे थे कि कैसे पावर शेयरिंग हुआ था।
वो कब तक कंटिन्यू हुआ? 1993 के बाद वो पावर शेयरिंग ना कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हुआ था। उससे पहले क्या हुआ करता था? ना पावर शेयरिंग था, लेकिन वो क्लियरली डिफाइंड नहीं हुआ था। सो हम देखेंगे कि जो भारत के कंटेक्स्ट में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल स्टेट। ना भारत को हम फेडरल स्टेट क्यों कहेंगे, इसका क्या वजह है, हम इसको फेडरल स्टेट क्यों कहेंगे? तो इसमें क्या बताया गया है? व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल स्टेट। तो हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स है भारत में दैट मेक इंडिया इनटू फेडरल स्टेट। ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम apply to the provisions of the Indian Constitution. The Indian Constitution is a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. ओके तो इसमें क्या बनाया गया है? थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए हम भारत को भी एक क्या बोल सकते हैं? एक फेडरेशन कह सकते हैं। जैसे कि हम पावर शेयरिंग, इससे हमें पता चलेगा 3 लिस्ट मेंशन किया गया है, तीनों लिस्ट में पावर शेयरिंग हुआ है। यूनियन लिस्ट में कुछ काम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट लिस्ट में स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स को कुछ लॉ बनाने के लिए जिम्मेदारी दिया गया है, और एक कंकरेंट लिस्ट है जो कि जुग्म तालिक होता है, जिसमें कि दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसको जो समझ लेते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या सारी चीज़ रहता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपकी केंद्र सरकार उसके ऊपर लॉ बनाता है। तो ये देखते हैं यूनियन लिस्ट क्या होता है। It includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currencies। क्योंकि ये सारे चीज़ों का यूनिफॉर्मिटी रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सारे जगह में भारत के कोने अनुकोने में क्या रहना? यूनिफॉर्मिटी रहना बहुत ज़रूरी है। एक तरह के नहीं होगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि हम जर्मनी में देखे थे कि जर्मन के हर अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के करेंसी था, और वो दैट वाज ए वेरी वेरी बिग हर्डल फॉर द जर्मन पीपल टू डू बिजनेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। हम देखे थे जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम। आगे देखते हैं। सो इसलिए ये वाला जरूर ये नेशनल इंपॉर्टेंस में रहता है, और आपकी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। So the union government alone can make laws relating to the subject mentioned in this list. सेकेंड लिस्ट में देखेंगे स्टेट लिस्ट, जो कि सारे स्टेट गवर्नमेंट जो भारत में है या किसी भी कंट्री में होते हैं वो इससे लॉ बनाते हैं। इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस सिस्टम है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड भी किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन द फेडरल स्ट्रक्चर्स। ओके, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरफियर नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में यानी कि दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। This includes education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will be considered. लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि जब किसी लॉज को लेके कन्फ्लिक्ट होता है तो जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है वही लॉ काम देता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल इन द कंकरेंट लिस्ट एज वेल। यानी कि इस कंकरेंट लिस्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अभी हम देखेंगे कि भारत में फेडरलिज्म का कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि फेडरलिज्म का कैसे हाल है। हम देखेंगे कि इसका जो कल्चर है इसको कैसे प्रोपागेट एंड प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि कैसे किया जा रहा है हम देखेंगे। So the real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. Okay, the nature of democratic politics को ज़्यादातर के हम श्रेय देना पड़ेगा, कि इसमें ज़्यादातर के एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि हैव ए लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन व्हिच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। जैसे कि आपके लिंग्विज्म हो, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो। ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
तो देखो, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया. Okay, it was a fast. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in India. From 1947 to 2020 कर देते हैं अभी तो. Okay, 2020 many old states have vanished. बहुत सारे old states जा चुका है and many new states have been created. बहुत सारे नया state भी बन चुका है. Okay, so areas, boundaries and name of states have been changed. Some states have been formed of the people who spoke same language. These states are known as linguistic states. तो ज़्यादातर के लिंग्विस्टिक बेसिस में भी बहुत सारे स्टेट्स बनाया गया है. पहले ये माना जाता था कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना जाएगा तो लोगों के बीच ये लिंग्विज्म क्रिएट ज़्यादातर के होगा, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि वो अपने एरिया में अपने खुद के कल्चर को, खुद की लैंग्वेज को बहुत बेहतरीन वे से प्रमोट कर रहे हैं. देन लैंग्वेज पॉलिसी भी है. एक सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी. हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत में हिंदी को तो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है, उसके साथ साथ 21 अदर लैंग्वेज को भी क्या किया गया है ना, शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया है. इसलिए लैंग्वेज भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है और उसके साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया है एंड दैट ब्रिज ऑफ द गैप बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. तो ये क्या कर रहा है, जो इंग्लिश है ना सारे जगह को ब्रिज अप कर रहा है, रिलेशन को बहुत अच्छा कर रहा है. जैसे कि तमिलनाडु के जो सदर्न बेल्ट के जो कंट्रीज जो स्टेट्स है, दे हैव ए बिग प्रॉब्लम इन लर्निंग हिंदी. सो at the very beginning of the time when Hindi was declared as official language, they initiated many move to protest Hindi as the official language, and they continuously spoke in favor of continue the English language as another major official language. और वो उनकी डिमांड पर अभी तक इंग्लिश को नहीं हटाया गया है. States to have their own official languages and the government work takes place in the official language of the concerned state. So इसलिए ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है. ऑफिशियल आपकी जो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू नहीं है. that are still a kind of unity, or it creates a kind of unity among the different states of the country. अभी हम देखेंगे सेंटर स्टेट का रिलेशन. सेंटर स्टेट का रिलेशन जैसे कि देखते हैं कैसे सेंटर स्टेट का रिलेशन है. रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस. तो इसमें देखिए रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन. देखो पहले सेंटर स्टेट का रिलेशन इतना अच्छा नहीं था. जब सेंटर में कोई एक सेंटर में जब गवर्नमेंट बन जाता था और दूसरे स्टेट जो होता था उसमें अलग अलग गवर्नमेंट बनने से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देता था. यानी कि देवर ओके, इनको क्या किया जाता था ना, डिस्ट्रॉयड किया जाता था. देवर अबॉलिश्ड, इनको ओके इनको ये किया जाता था, राइट. तो बाद में क्या हुआ ना, देयर वाज अ टाइम व्हेन many parties came together, there was emergence of many regional parties, there was the importance of many regional parties, and a time came when the national party had to allied with the स्मॉल पार्टीज, छोटे छोटे पार्टी के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाना पड़ा. उसके बाद ये और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा तंग नहीं किए और जो there was a kind of power sharing which appeared in the politics of India. ओके, तो ये आप बहुत बेहतरीन वे से आप समझ सकते हो. ओके, तो अभी हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. भारत में डिसेंट्रलाइजेशन किसे किया जा रहा है, कैसे हुआ है. तो देखिए बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर को लेके
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया जाता है। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट यानी कि आपके जैसे पता है पंचायत राज सिस्टम में जो आपकी ग्राम पंचायत हो या एनएससी हो या म्यूनसिपाल्टी हो, इसमें जो पावर हम देते हैं, कुछ पावर देते हैं, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ओके, अगर किसी भी तरह के डाउट होगा तो आप उधर क्या कर सकते हो, आप बुक्स रेफ़र कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो बार बार क्वेश्चन क्या करो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, so if there be any problem then do ask me question on the comment box and I will do reply them in a proper manner. Okay, hope you understand. So आगे देखते हैं decentralization in India. When power is taken away from central and state governments and given to the local government, it is called decentralization. यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण कराना, ओके, पावर का शेयरिंग कराना, ओके, डिफरेंट यूनिट्स में। The basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. Suppose आपको ये ट्यूबवेल खोलना है, would you like to write an application to the Prime Minister of India? No, you will definitely thought of to write to the Sarpanch or the local authority. They will best know about the problems of your area. यानी कि आपके लोकल प्रॉब्लम के लिए आप सेंटर से या आपके भुवनेश्वर से आपका नहीं आएगा, राइट। ओके, सो लोकल पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. A major step towards decentralization was taken in 1992. This is what I told you. The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Here are the key features of three tier of democracy. इसको पंचायत राज सिस्टम कहा जाता है. It was constitutionally mandatory to hold regular election to local government bodies. तो ये देखो, इसके माध्यम से कुछ लॉ बना गया है कि ये मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. और क्या सुविधा किया गया है ना, और क्या प्रावधान है ना, seats are reserved in elected bodies and executive heads of these institutions for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. ये सिस्टम भी किया गया है कि कैसे ये ज़्यादातर की इफेक्टिव हो पाएगा, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल्सो किया गया है. जैसे कि आप के बारे में पता है रिजर्व सीट के बारे में, है ना, बहुत सारे रिजर्व सीट बनाया गया है ताकि बहुत सारे लोग यानी कि ये गवर्नेंस में इन्वॉल्व हो पाएंगे, यानी कि ग्रास रूट लेवल यानी कि लोकल लेवल से लोग अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे, इसलिए ये सारे रूल्स बनाया गया है. एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, यानी कि 1/3 यानी कि 33%, राइट. 1/3 यानी कि 33%, राइट. तो इससे ऊपर State Election Commission has been created in each state to conduct the पंचायत and municipal election, जिसको हम यानी कि पंचायत राज सिस्टम कहते हैं. The state government are required to share some power and revenue with local government bodies. ओके, क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ पावर देता है, साथ में कुछ रेवेन्यू भी देता है. The nature of power sharing varies from one state to another state. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पावर शेयरिंग अलग अलग होता है. देन पंचायत राज सिस्टम में क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नॉन एज पंचायत राज सिस्टम. एज आई टोल्ड यू, ईच village or a group of village in some states has a gram panchayat. This is a council consisting of several ward members, often called panch, and the president or sarpanch. Okay, they are directly elected by all the adult population living in a village or ward. Gram panchayat is the decision making body of the entire village. The panchayat works under overall supervision of Grama Sabha. All the voters of the village are its member. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Grama Sabha. तो ज़्यादातर के विलेज एरिया में क्या होता है, ग्राम पंचायत रहता है, और रूरल और अर्बन एरिया में आपके एनएससी, म्यूनसिपाल्टी और कॉरपोरेशन रहता है. और ग्राम पंचायत का और सारे डिसीजन जो ग्राम सभा रहता है डिफरेंट गाँव
4-5 गांव को लेके या 10-12 गांव को लेके, यानी कि वार्ड में डिवीज़न किया जाता है और वो लोग जो डिसीजन ले जाता है ग्राम पंचायत में उसका रूल्स बनता है। व्हेन ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर दे आर फॉर्म ए पंचायत समिति और मंडल बनाते हैं। ओके, द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। उसको हम जो पंचायत समिति मेंबर कहते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर constitute the Jilla Parishad. Okay, and the member of the Lok Sabha, MLAs of the district and some other officials of other district levels bodies are the members of Jilla Parishad. तो ये है आपके पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया है। जो म्यूनसिपाल्टी है जो टाउन एरियाज में रहता है। ओके, तो ये आपके जैसे कि बिग सिटीज में आपके म्यूनसिपाल्टी रहता है, सबसे बड़ा सिटी में आपके कॉरपोरेशन रहता है और छोटे छोटे एरिया में NSCs रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पंचायत राज systems, and I hope you understood the thing clearly. And if there be any doubt, you please do comment and write to me wherever any problem. Feel free to ask me questions and do write. Okay, go through the book again, try to understand the concept what I shared with you. Okay, thanks, bye for now.